स्क्रीन देख लीजिए एक बार, शो हो रही है आपको? ओके देन, ओके देन, गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो वी आर स्टार्ट today regarding the concept of property and ownership. Till now we covered the every aspects of the formation of law in the eye of jurisprudence. Now we also discuss about the property and ownership. Property is a thing which always be attached with the human being. Property, if I talk it as assets, या फिर wealth, या मैं कहूँ prosperity. These are the things which come with the civilization. When the person becomes the civilized within itself and he want to be become stability with this civilization. कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी क्या है कि जब हमने सिविलाइजेशन को पाया और जब हमने स्टेबिलिटी वर्ड रिकॉग्नाइज करा, वी वांट टू बी स्टेबल इन इटसेल्फ. हर व्यक्ति अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहता है, रिगार्डिंग द फाइनेंशियली, रिगार्डिंग द इकोनॉमिकली, रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी बेसिस, रिगार्डिंग द सोशल बेसिस. तो उस स्टेबिलिटी की जो लड़ाई चल रही है दैट इज अटैच विद द प्रॉपर्टी. अब वो स्टेबिलिटी किस डिटर्मिनेशन में मांग रहा है, किस एस्पेक्ट्स में मांग रहा है और किस लेवल की मांग रहा है, दैट इज विद द प्रॉपर्टी. That's why we require to be make the definitions of the property and ownership. There's a two thing is there. First is there the property. Property can be anything which make us some type of claim, some type of right with animal. जिस चीज कोई मतलब ऐसी लॉ या फिर मैं कहूँ ऐसी चीजें जिससे हमारा कोई क्लेम क्रिएट हो, हमारा राइट क्रिएट हो, हमारी एग्जिस्टेंस क्रिएट हो, दैट इज रिलेटेड विद द प्रॉपर्टी. And to own that right, own that claim, own that existence are called the ownership. ठीक है, एक राइट क्लेम होना वो प्रॉपर्टी है और उस राइट को ओन करना, टू बी बियर दैट राइट, टू बी केप्ट दैट राइट इन योर पॉकेट, दैट इज द ओनरशिप. एंड द बिटवीन द प्रॉपर्टी एंड ओनरशिप देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ पोजीशन. यहाँ पे अब लॉ की क्रिएशन स्टार्ट होती है कि एक मैं कह रहा हूं प्रॉपर्टी है, उसका एक तो ओनर है कि हु हैव द राइट टू क्लेम ऑन दैट प्रॉपर्टी, एंड द पर्सन हु हैज द possess of that property, who is current acquire that property, who has the current physical capabilities with that property. ठीक है, पोजीशन ऑलवेज इन अ फिजिकल सिनेरियो. And if I discuss about the ownership, it can be the legal, it can be the virtual, or it can be the any delegation mode. किसी और ने वो पोजीशन ले रखी है, ओनरशिप ले रखी है, बट पोजीशन इज ऑलवेज बी इटसेल्फ हु इज द एक्चुअली एक्वायर दैट प्रॉपर्टी. और जो व्यक्ति एक्वायर कर रहा है वो अपनी कैपेसिटी में कर रहा है, किसी के बिहाफ में कर रहा है. अगर किसी के बिहाफ में कर रहा है तो उसकी पोजीशन मानी जाएगी जिसके बिहाफ में वो है. अगर वो अपनी कैपेसिटी में उसे परचेस कर रहा है तो दैट इज इन हिज पोजीशन. सो हियर द कंसेप्ट रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी, ओनरशिप एंड द पोजीशन बिटवीन देम, बिटवीन द ओनरशिप एंड प्रॉपर्टी. If I go with the concept of property, so what is happened that there is a bunch of bundles, there is a bunch of rights, bundle of right. बहुत सारे rights होते हैं एक प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग. जब भी सारी राइट्स मिल जाती तो इसे तो हम बोलेंगे ओनरशिप. इस ओनरशिप में से एक राइट होता है पोजीशन का. उसके अलावा बहुत सारे राइट है एक्वायर करने का, यूज करने का, डिमोलिश करने का, सेल करने का, अमेंड करने का, लीज देने का, और एज देयर ओन रिक्वायर्ड मेक समथिंग डिफरेंट यूज विद इट, वट एवर वी डू. That are the bundle of right which are vested through the ownership. Now we come with the property. Property is like a fortune with a man which he had himself in it, like a claim, like a personal obligations, like a personal acquirance of that property. It related with the two three things: law of property, law of obligation, and law of status. If I Salman defined that the right and a substantive civil law, property are deal with the law of property, law of obligation, or law of status. A law of property is right in rem, and law of obligation is a personam.
Right in rem means a right against the public at large, and persona means the right against at the particular person. Get it? Okay. So that is the thing which is are vested with the property. If to be more discuss about the property, we go with the theories. Ki how the property is created. There is so many theory behind it. The how the property is created. First theory is said that the natural law theory. Natural law theory is one of the basic theory. Kant ने बड़ा इसको support करा. Kant and Blackstone somehow. This theory said that the properties come from the nature. No one created, no one make it. They're just a property. Human being come and start to use it. Who is the first user of property? Become the owner. सब कुछ समाज में नेचर में ऐसे ही था. ह्यूमन बीइंग आया, उसने उसको यूज करना स्टार्ट करा. जैसे ही उसने उसको यूज करा, उसने कही अरे ये तो मेरी प्रॉपर्टी है. वहां पे उसने जैसे प्रॉपर्टी क्रिएट करी, ओनर से पहले क्रिएट कर दी. मेरी प्रॉपर्टी है. फर्स्ट आई ओन व्हाट आई ओन, दैट प्रॉपर्टी, दैट थिंग, दैट लिमिटेशन. प्रॉपर्टी एक वो लिमिटेड एरिया है. अच्छा, एक चीज और प्रॉपर्टी के मैं अगर करेक्टरिस्टिक्स बताऊं, वेन एवर यू यूज द वर्ड द प्रॉपर्टी, इट मीन्स यू आर लिमिटाइज योर सेल्फ कि आई ओनली दैट थिंग. प्रॉपर्टी होती है सर्टिफाइड, हे वाई में नहीं होती कि फला फला प्लॉट मेरा है, कितने बाई कितने का, इतने बाई इतने का, इतने स्क्वायर यार्ड का है. अगर मैं कहूं कि ये सारा संसार ही मेरा है तो मैं प्रॉपर्टी नहीं बोलूंगा. लेकिन जब मैंने कह दिया प्रॉपर्टी, इसका मतलब संसार का कुछ पार्ट मेरा है. एंड इट्स द डिफॉल्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग कि वो प्रॉपर्टी पे ज्यादा फोकस कर रहा है, संसार पे कम कर रहा है. ठीक है. So that is the natural law theory कि human being come or everything are created by the nature and human being start to use it and create a ownership on this and make a property. That is called the natural law theory. Austin and especially Bentham are actually against of that theory. It says that it's not an appropriate theory. Nature doesn't create that thing. It's a thing which are created by the another ways. अगली theory आती है labor theory. Labor theory is that theory which are said that the property are the produced work. Property we need to be produced. भाई समाज में तो बहुत कुछ है, कुछ यूज का है, कुछ यूज का नहीं है. और उसको यूज का बनाने के लिए जो वर्क हो रहा है, जो आउटपुट हो रही है, वो लेबर है. तो जब मैंने कहा कि समाज में सब चीज अवेलेबल था, नेचर ने सब चीज दिया, तो एक व्यक्ति ने उसे जब यूज करा तभी तो वो उसकी प्रॉपर्टी बनी. When he start to first use, so the word start to first use, he start to first labor on that property. He start to work labor on that area. Then he said that it's my property. It means that by virtue of that labor theory, we create the property. इस संसार में हजारों लाखों चीजें हैं, सब प्रॉपर्टी तो नहीं है. जिसको मैंने क्रिएट करा वो प्रॉपर्टी है. ये किस बात थ्योरी आई? यहां तक क्लियर हुई? But Bentham also against that labor theory. Bentham said that the property can never be created. It's only be earned. हम कैसे क्रिएट कर देंगे प्रॉपर्टी? इट्स क्रिएट बाय द गॉड. वी आर अर्नड दैट प्रॉपर्टी, वी आर एक्वायर दैट प्रॉपर्टी, वी आर पे समथिंग दैट प्रॉपर्टी. अब उस पेमेंट में आपने लेबर दी, आपने सर्विसेज दी, जो भी आपने चीज दी, वो एक अलग सिनेरियो है. Then we go with the metaphysical theory. Hegel is the supporter of that theory. Hegel says that the property have some of the physical relationship with us. It's a reality which is required to protect. Property is a thing which is nothing more than the need of the protection. We are going somewhere, we are start to use that thing. Now when someone try to encroach on my used area, then I say that you can't include, it's my area, it's my property. Get it? मेटाफिजिकल थ्योरी ने ये कहा कि भैया कुछ नहीं था, सब लोग आए यूज कर रहे थे. लेबर और नेचुरल थ्योरी का कोई सीन नहीं है. जब हम इसको यूज कर रहे थे और मेरा यूज अच्छा होने लगा, जैसे ही मैंने बेटर कुछ करा, तो अदर वन स्टार्ट टू इंक्रोच माई प्रॉपर्टी. एट दैट टाइम आई सेड यू कांट इंक्रोच इट, इट्स माई प्रॉपर्टी एंड आई नीड टू प्रोटेक्ट इट, एंड आई कैन प्रोटेक्ट इट ओनली बाय गिविंग द नेम ऑफ प्रॉपर्टी. ठीक है भाई, सब लोगों के पास पूरा नेचर था, कोई उस नेचर में कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है. जिसका अच्छा बन रहा उसका आप चीजें लेने लगे. वही कॉपीराइट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाली बात आई. वहां पे हमने कहा कि ये प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टी मतलब इफ देयर इज समथिंग इज प्रॉपर्टी, देयर इज अ डेफिनेटली ऑफ ऑनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी. क्लियर? लेबर थ्योरी में क्या अर्न के लिए बताया सर?
लेबर थ्योरी में ये कहा कि हमने उस चीज को बनाया है, प्रॉपर्टी इज नॉट बी अर्न। अर्न का तो क्रिटिसिज्म था, उसने कहा कि मैंने क्रिएट करी, आई क्रिएट दैट थिंग। ठीक है, अब क्योंकि मैंने क्रिएट करी, ओनली आई विल बी यूज इट। ठीक है, नेचुरल में तो फिर क्या रहेगा सर? देखो मेजर कंसेप्ट सबका सिमिलर है, आप बस थोड़ा सा एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूँ कि मेजर कंसेप्ट सबका सिमिलर है। प्रॉपर्टी थी, हमने यूज करनी स्टार्ट करी, और जैसे यूज करनी स्टार्ट करी हम उसके ओनर बनते चलेंगे। नेचुरल लॉ थ्योरी ये कह रही है कि जब हमने जिसने पहले यूज करा वो ओनर बन गया अपने एरिया का। लेबर थ्योरी कह रही है भाई पहले यूज से कुछ नहीं है, एक प्रॉपर्टी पे कभी किसी ने कुछ करा, कभी किसी ने कुछ करा, लेकिन जिसने अच्छी लेबर करी वो ओनर बना उसका। भाई एक ही चीज काफी लोगों ने यूज करी, लेकिन बढ़िया जिसने लेबर करा उस पे, जिसने मेहनत करके उसे अच्छा करा, तभी तो प्रॉपर्टी बनाई। ठीक है, और तो कोई उसे यूज ही नहीं कर रहा था, धक्का देके चला गया, फिर यूज करा तो ठीक से नहीं करा। ठीक है, जो एक्चुअली पे हिज लेबर ऑन दैट थिंग एंड मेक अ प्रॉपर्टी। इसने कहा कि प्रॉपर्टी क्रिएट होती है, नेचर ने हमें कुछ नहीं दिया, नेचर ने बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल कराए, उस रिसोर्सेज को मिला के हमने मेहनत करी, प्रॉपर्टी बनाई। ठीक है, और नेचुरल लॉ थ्योरी कह रही कि भाई नेचर ने सब कुछ दे रखा था, हमने यूज करना स्टार्ट करा और प्रॉपर्टी बन गई। क्रिएट करना और लेबर करना और यूज करना दोनों। यूज करने का मतलब ये है कि जैसी थी वैसे यूज करा, और लेबर थ्योरी कह रही कि जैसी थी ऐसे नहीं करा, क्रिएट करी प्रॉपर्टी, वी मेक समथिंग डिफरेंट विद इट। ठीक है, and the metaphysical theory said कि भाई लेबर से प्रॉपर्टी नहीं बनी, जब someone try to encroach it, आपने जैसी थी ऐसी मिली, फिर उसमें लेबर करा, काम वाम करा, अब कोई उसे छीनना चाहता है, जैसे ही कोई छीनने आए तब आपने जब ये वर्ड यूज करा कि इट्स माई, यू कांट यूज इट, दैट बिकम द थिंग प्रॉपर्टी। नाउ वी कम विद द हिस्टोरिकल। हेनरी मेन हमेशा हिस्टोरिकल स्कूल्स के साथ रहा है। व्हेनेवर यू फाइंड द वर्ड ऑफ द हिस्टोरिकल थ्योरी यू हैव टू बी गो विद द हेनरी मेन। हेनरी मेन एंड रॉस्को पाउंड cumulatively said that property is not be a belong from a individual। एक व्यक्ति विशेष की कभी कोई प्रॉपर्टी नहीं, इट्स बिलोंग टू द सोसाइटी। सोसाइटी एट लार्ज के थ्रू हमने कस्टम के साथ एक प्रॉपर्टी क्रिएट करी, एंड दैट सोसाइटी एंड स्पेशली द पैट्रियार्कल सोसाइटी आर गोइंग टू डिवाइड एंड डिवाइड एंड डिवाइड, एंड देन दे आर कम द प्रॉपर्टी फ्रॉम द सोसाइटी टू फैमिली एंड फैमिली टू द इंडिविजुअल। ऐसा नहीं हुआ कि सडनली सब आए और सब अलग अलग भग गए और उन्होंने अपनी अपनी प्रॉपर्टी क्रिएट कर ली। पहले तो हम क्यूमुलेटिवली यूज करा करते थे, एक साथ यूज करते थे, सोशल बीइंग के साथ हमने प्रॉपर्टी का कंसेप्ट ही क्रिएट नहीं करा, लेकिन जब उस सोसाइटी में डिवीजन स्टार्ट हुए तब प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आया। क्लियर? Historical school simply say that we first we make the society cumulatively use that property, when that society are going with the division कि फैमिलीज हैं और फैमिलीज के अंदर इंडिविजुअल्स हैं, जब डिवीजन होना स्टार्ट हुआ तब प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आया। जब तक हम एक साथ यूज करें तब तक प्रॉपर्टी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, वर्ड प्रॉपर्टी था ही नहीं, वी जस्ट स्टार्ट टू यूज द नेचर थिंग, नेचर के प्रोडक्ट को यूज करते थे हम। नेक्स्ट इज अबाउट द साइकोलॉजिकली। साइकोलॉजिकली से दैट द माइंड, साइकोलॉजी थ्योरी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर। बेंथम को ये थ्योरी अच्छी लगी। बेंथम एंड ऑस्टिन ऑलवेज रिलेटेड विद द एनालिटिकल स्कूल, दे ऑलवेज बी बेस्ड ऑन द थिंक प्रोसेस। दे सेड दैट द प्रॉपर्टी इज नथिंग, इज जस्ट अ कंसेप्ट ऑफ माइंड, ये मेरा है ये तेरा है। जब माइंड में ये पिक्चर क्लियर हो जाए कि व्हाट्स इज माइन एंड व्हाट्स इज योर्स एंड हाउ कैन यू एक्वायर योर्स प्रॉपर्टी टू मी, then the concept of property is created. If your mind didn't allow you that property is mine, that property is someone else, then how there is no meaning left with the word property. वो कि दिमाग की बात है, जो जिसको जैसा समझ रहा है। भाई प्रॉपर्टी थोड़ा सा आगे चल के मैं तो प्रॉपर्टी एक्वायर करने के 3-4 तरीके हैं, या तो एग्रीमेंट करके सेल परचेस वगैरह कर ले, कब्जा करना भी होता है, एक इंक्रोचमेंट भी होती है। जो तरीका आप अपनाओगे वो आपकी माइंड का प्रोडक्ट है। दैट इज द साइकोलॉजिकल थ्योरी। प्रॉपर्टी इज समथिंग विच इज इनसाइड योर माइंड, नॉट आउटसाइड द वन। नेचर सबके लिए समान है, सबके लिए एक जैसा है। आपने बहुत सारी चीजें कवर कर रखी है, कोई उसको एक्सेप्ट कर रहा है। प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले तो सामने वाला आपकी प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट करे, तभी तो आपने कहा कि नहीं नहीं ये मेरी है। आपने मारा उसको और उसे छीन ली, तेरी कैसे, सबकी है।
Get it? That is the mind. Last we come with a functional theory जो आजकल ज़्यादा चल रही है, Roscoe-Pound theory. It says about the there is a nothing, there is a concept of interest, of personality. How much interest are included with that property? How much interest are left with that property? That is the concept of the property. How much we are attached with that land. हमें उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है वो डिसाइड करती है प्रॉपर्टी है कि नहीं है. एक जगह है जहाँ पे आज जंगल है और जगह का मालिक जो है उससे उस जंगल की कोई कीमत नहीं है, वो दूर रहता है, अपने कहीं जॉब कर रहा है बेचारा छोटी सी. सडनली उस जंगल पे गवर्नमेंट एक्वायर करने का प्लान करती है, उस पर सिटीज स्टेब्लिश करने का प्लान होता है. देन यू सडनली बिकम द रिच विद योरसेल्फ. सडनली लोग अमीर हो जाते हैं क्योंकि आपका एरिया, आपकी प्रॉपर्टी, आपका जो जमीन थी वो किसी चीज में आ गई. अब तक जो किसी काम की नहीं थी वो सडनली आपके लिए प्रॉपर्टी बन गई. टिल नाउ यू आर नॉट इवन कंसर्न अबाउट दैट हु इज द पोजेसर ऑफ दैट प्रॉपर्टी और नॉट. और जैसे आपको पता चला है कि इट्स हैव द मच वैल्यू, it's raised with their so much value with themselves, then you start to say that it's my property. So it's an interest of personality, how much you relate with that interest regarding the privacy, owner, reputation, etc. कई बार प्रॉपर्टी रेपुटेशन का सिंबल हो जाता है, ओनर का सिंबल हो जाता है. यू कांट सेल इट, तो आपके लिए उसकी बड़ी अटैचमेंट होगी. That is the concept of property. Property is a thing which created by us, not the created by the another one. Nature give to us everything without any discrimination. हवा बिना डिस्क्रिमिनेशन के मिलती है, पेड़ से जब फल लगता है वो बिना डिस्क्रिमिनेशन के मिलता है. बट वी थिंक स्टार्ट टू क्रिएट द कंसेप्ट व्हाट इज योर्स एंड व्हाट इज माइन, देन वी मेक स्टार्ट टू रेज द प्राइस ऑफ एवरीथिंग. ये तो हवा को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, नहीं इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती कि ये बिक्री होती. वाटर को कंट्रोल नहीं कर सकते, हालांकि वो तो बिक ही रहा है. दैट इज द थिंग प्रॉपर्टी. वो तो ह्यूमन बीइंग जितना एक्वायर करना चाहता है उसने वो करा है एक्वायर. नाउ वी गो विद द काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी. देयर इज so many kind of property which in a PDF which I share to you, so you just have to be read that words and there is a simple thing. नाम से ही आपको पता चल जाएगा किसका क्या मतलब. थोड़ा सा हम यहाँ पे एक देख लेते हैं, रीप्रोप्रिया प्रॉपर्टी और री एलिना प्रॉपर्टी. जूरा इन रीप्रोप्रिया एंड जूरा इन री एलिना. गिव मी अ मिनट जस्ट, आई थिंक देयर इज समथिंग इम्पोर्टेंट कम टू यू. नथिंग. तो वी आर इन जूरा इन रीप्रोप्रिया एंड जूरा इन री एलिना. देखो इसका सिंपल मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो रीप्रोप्रिया मीन्स आई एम द ओनर ऑफ माई प्रॉपर्टी एंड आई हैव द राइट इन माई प्रॉपर्टी. मेरे पास अपनी प्रॉपर्टी का मैं ओनर हूं, अपनी प्रॉपर्टी के अंदर मेरे पास कुछ राइट है. री एलिना मीन्स आई हैव द राइट इन अनदर प्रॉपर्टी. मैं ओनर नहीं हूं किसी प्रॉपर्टी का, कोई और ओनर है और मेरा उस प्रॉपर्टी के अंदर कुछ राइट्स है. जैसे कि लीज पे मैंने कोई प्रॉपर्टी ले ली, सिक्योरिटी पे मैंने कोई प्रॉपर्टी ले ली, मॉर्गेज टाइप को मैंने प्रॉपर्टी ले ली. दैट इज द थिंग. एंड आई एम द ओनर एंड आई हैव द राइट्स. तो दो चीजें, मटेरियल थिंग्स एंड इमटेरियल थिंग्स. मटेरियल थिंग्स इज लाइक दैट व्हिच यू कैन बी टच. Immaterial which you can't touch, you just there is some type of document, some type of feelings with that. So touch object is like land, cattle, and that is also called a corporeal property, and this is called the incorporeal property. It like copyright, trademark and patent. ठीक है जी, यहाँ तक ये चीज क्लियर हुई. मटेरियल इमटेरियल, सेम मटेरियल इमटेरियल यहाँ पे भी है. मटेरियल में तो लीज एंड सिक्योरिटी हो गई और इमटेरियल में इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी होगी. जैसे कि आपका किसी पे कॉपीराइट है और आपने मुझे वो राइट दे दिया कि इससे तक तू यूज कर लियो. ठीक है, कॉपीराइट ट्रांसफर होते हैं ना, तो कुछ आपने मुझे वो राइट ट्रांसफर कर दिया. दैट इज द थिंग. प्राइमरी डिफरेंस इज दैट आई एम द ओनर ऑफ माई प्रॉपर्टी. मैं ही ओनर हूं और मैं ही यूजर हूं. यहाँ पे ओनर एक बंदा है और यूजर दूसरा बंदा है. ठीक है जी. चलो नाउ वी कम विद द एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी. के प्रॉपर्टी के हमने बारे में बात भी करी, का काइंड से देखे
देन वी कम विद द एक्विजिशन कि हाउ वी एक्वायर दैट प्रॉपर्टी। बड़ा सिंपल से 3-4 तरीके। फर्स्ट इज द पोजीशन। भैया पोजीशन बहुत जरूरी है। इंडियन जूरिस्प्रूडेंस सेज दैट द पोजीशन इज 9 मार्क्स आउट ऑफ 10। आपके पास पोजीशन है, इसका मतलब 10 में से 9 नंबर आपको मिल गई। इट्स मीन कोर्ट डीम दैट द 90% चांसेस दैट यू आर द ओनर। So position is the main thing, and position is the physical existence with the property, physical relationship with the property. It can be the direct or can be indirect. Direct आप खुद उस घर में रह रहे। Indirect is like you just be left someone, caretaker छोड़ रखा आपने, कोई बंदा छोड़ रखा। Who acquired that property, who possessed that property on behalf of you। उससे जब भी पूछा जाएगा हाँ जी भाई कैसे खड़ा है, मेरे मालिक ने भेजा। मालिक कौन? वो है। वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैं खुद मालिक हूँ। ठीक है। जैसे कि सपोज अगर कोई सर्वेंट है और मालिक उसे छोड़ जाए और सर्वेंट ये कहना स्टार्ट कर दे आई एम द ओनर, और जिस दिन से उसने ये कहा उस दिन से लेके 20 साल तक अगर वो यही कहता रहा आई एम द ओनर, आई एम द ओनर, अब मालिक जो एक्चुअल ओनर है वो कोई एक्शन नहीं ले रहा, देन आफ्टर द 20 ईयर ही बिकम द एक्चुअल ओनर ऑफ इट। गेट इट? सर 12 ईयर होता है ना सर? क्या चीज? 12 ईयर होता है सर, 20 ईयर नहीं होता है। 12 है श्योर? यस सर। आई थिंक नहीं। इंडियन लिमिटेशन एक्ट में जहां तक मुझे याद है 20 था। लेट मी चेक। लिमिटेशन एक्ट शेड्यूल पीरियड ऑफ लिमिटेशन। शायद आप सही कह रहे हैं, इट्स 12 ईयर। रिकवर द पोजीशन ऑफ मोनोपोली मॉर्गेज आफ्टर द ट्रांसफर, रिकवर द सरप्लस प्रॉपर्टी। आई थिंक यू आर राइट। आप सही कह रहे हो, 12 ईयर है ना? तो 12 साल के अंदर अंदर आपने अगर उस पर क्लेम नहीं करा देन दैट टेनेंट बिकम द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। सो दैट्स व्हाई वी से द पोजीशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन केस टू प्रूव द ओनरशिप ऑफ दैट प्रॉपर्टी। और बड़ा ही कोर्ट का सिंपल सा मानना है कि भैया अगर आप ओनर है तो पोजीशन क्यों नहीं है आपके पास? पोजीशन तो सबसे पहले होनी चाहिए थी। इन केस किसी डिफॉल्ट में किसी फॉल्ट में पोजीशन चली गई तो वो आप प्रूव करें, लेकिन अब तक आपने पोजीशन ही नहीं लिया। कोर्ट नेवर बी बिलीव दैट टाइप ऑफ थिंग कि दैट यू एक्वायर ऑफ द सो मेनी लैंड एंड यू फॉरगेट दैट कि आपका कोई लैंड भी है वहां पे। कोर्ट नेवर बी गो इन दैट थिंग्स। क्लियर? नेक्स्ट इज द प्रेस्क्रिप्शन। एक तो पोजीशन के थ्रू आप प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं। प्रेस्क्रिप्शन इज लाइक अ प्रोसेस, एक साइडवेज प्रोसेस है बाय वर्च्यू ऑफ दैट यू कैन बी एक्वायर द प्रॉपर्टी। जो भी कोई प्रोसेस हो, दो तरीके के होते हैं प्रेस्क्रिप्शन के इफेक्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो बंदे को प्रॉपर्टी मिलती है वो पॉजिटिव प्रेस्क्रिप्शन है और जिसके से प्रॉपर्टी जाती है वो नेगेटिव है। सिंपल 12 ईयर वाला एग्जांपल है। If you continuously acquire that property for the more than the 12 years, then you will be prescribed as a owner। और ये prescribed law है एक, ऐसा नहीं कि कहीं मैंने अपने मन से बनाया फिर कोई प्रेस्क्रिप्शन इसका अवेलेबल है, यू अडॉप्ट दैट थिंग एंड अलाउड हो गया। डॉक्टर देता ना प्रेस्क्रिप्शन देता, दवाई ले लेना ठीक हो जाओगे, तो वही बेरेक ने प्रेस्क्रिप्शन दिया, मैंने ली, मैं ठीक हो गया, मुझे प्रॉपर्टी मिल गई। Agreement is simple thing by virtue of sale, by virtue of transfer, gift, mortgage. You can transfer the acquisition and the proposition to the property to the someone else, and ownership also. Inheritance is like the concept of the succession and the legal heirs after the death of the deceased, and the property is then transferred to his legal heirs. शादी और मैरिज हमारे लिए इतनी बड़ा बूम इसलिए है क्योंकि व्यक्ति चाहता है कि उसका नाम जन्मों जन्मांतर तक याद रखा जाए, और उस नाम के लिए ही ओनली फॉर दैट नेम ही मेक बेबी एंड बिलीव दैट बेबी यूज हिज नेम फ्रॉम सो मेनी लॉन्ग टाइम। दैट्स व्हाई ही क्रिएट द प्रॉपर्टी फॉर हिम कि मेरी सारी जमीन आप पे रहेगी, बस मुझे भूलना मत। ये लॉजिक है समहाउ। अब तो ये कम हो गया, पहले ये बहुत ज्यादा था।
कि बेटे की वजह से पिता का नाम चल रहा है। आज भी लोगों का बड़ा होता है कि वंश का क्या होगा। अरे भैया, कौन से राजा महाराजा के वंश से है जो तेरी प्रजाति लुप्त हो जाएगी। तो वो यही कंसेप्ट है कि फैमिली हायरार्की को वो आगे बढ़ाता रहे बस। हाँ जी सर। ठीक है। सो दैट इज द फोर मोड ऑफ द एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। पोजीशन, यू डायरेक्टली गेट द पोजीशन, द फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रॉपर्टी। प्रेस्क्रिप्शन इज द मेथड, prescribed method which you can be used to get the acquisition of property. Agreement is the way why you can get the property with the mutual consent, and the word agreement fulfill the all essential requirements of the Indian Contract Act. Last with the inheritance depend upon the religion, and through the inheritance after the decease of a person, his legal heirs and kins get the property as per the required manner. Get it? Now we last come with the ownership. The property has been created, possession also been defined. Now who is the owner? Owner is the person who actually own that thing, who have the complete right with that property. Whenever I use the word ownership, it means he have the all bundles of right. इसके पास जो इतने राइट हैं उसके अलावा कहीं पे कोई राइट नहीं है। ओनरशिप हैज बीन डिफाइंड बाय द जूरिस्ट. Some opine its relation between the person and the right vested in him, and some opine said it's a relation between the person and think that is object of ownership. दो इन्होंने डेफिनेशन की। कुछ तो कहते हैं कि एक व्यक्ति और उसके अंदर के राइट को ओनरशिप कहते हैं कि प्रॉपर्टी रिलेटेड उसके अंदर क्या राइट है। एक ये है कि एक व्यक्ति और उसका किस पे अधिकार है, उसके ऑब्जेक्ट के साथ उसका रिलेशनशिप ओनरशिप बताता है कि मेरा मेरी प्रॉपर्टी से क्या रिलेशनशिप है, ओनरशिप का रिलेशनशिप है। और मैं कहूँ कि मेरा मुझ पे इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कौन कौन सारे अधिकार है, दैट थिंग आर सोल्ड एट द ओनरशिप. In the PDF which I shared, the some of the definitions, the type of ownership are defined. You have to be just go through with that. बड़ी simple सी definitions हैं. You need to be memorize it. हाँ जी हाँ जी. सर ओनरशिप का कल करें सर? फोन आ रहे हैं मेरे को ना बार-बार। फोन आ रहे हैं आपको? ओके देन वी विल डू इट ऑन टुमारो. वैसे छोटा सही रहता है, बस करेक्टरिस्टिक्स बता दूं सिंपल से. कोई नहीं, कल कर लेंगे सर, छोटा ही तो है सर। चलो कोई नहीं. ये कर लेंगे, ये भी कंप्लीट कर ओके देन. लेंगे। ओके देन बाय. ओके थैंक यू सर।